Assalamu alaikum. Welcome to Noor School and College Mansehra. Dear student, in the last lecture we have discussed about the most important topic that is called isotopes. So let's revise the main points of previous lecture. What are isotopes? Isotope is basically atom of the same element having same atomic number but different mass number is called isotope. We can define isotope by simple way like that atom of same element having same number of protons but different number of neutrons are called isotope. We also discuss isotope of hydrogen that are ordinary hydrogen, heavy hydrogen and radioactive hydrogen. What is protium? Protium is ordinary hydrogen isotope. It has the largest percentage of naturally occurring isotope and denoted by symbol H. It has one proton, one electron and no neutrons. Second, we discuss about deuterium. Deuterium is the second isotope of hydrogen. It is also called heavy hydrogen. Percentage of deuterium is about 0.0015%. It has one proton, one electron and one neutron. It is denoted by symbol D. And the third one, that is tritium. It is a radioactive isotope of hydrogen. The number of tritium isotope is 1 about 10 million. It has one proton, one electron and two neutron. It is denoted by symbol T. We also discuss some of the uses of isotope like uranium isotope is used as a fuel in nuclear reactor. Isotope of cobalt is used for the treatment of cancer. Isotope of iodine is used for the treatment of goiter disease. Isotope of carbon is used to determine the age of material like tree, etc. So dear student, in this lecture we discuss one of the most important topic of this unit, which is called law of constant composition. What is law of constant composition? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को सबसे पहले आपके पास जोसेफ प्राउस्ट ने पेश किया. सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट मस्ट याद रखने. हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट. अब ये लॉ कहता कि दिस लॉ स्टेट दैट एवरी सैंपल ऑफ पेयर सब्सटेंस, कोई भी पेयर सैंपल का कोई भी आप पेयर सब्सटेंस का सैंपल ले लें, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट, इसके अंदर हमेशा सेम एलिमेंट होंगे इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. उनकी प्रोपोर्शन जो है वो आपके पास फिक्स होगी रिगार्डलेस ऑफ इट्स सोर्स एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन. चाहे किसी भी सोर्स से या किसी भी मेथड से वो सब्सटेंस प्रिपेयर किया गया हो. फिर से बता देता हूँ आसान अल्फाज में कि कोई भी प्योर सब्सटेंस हो, चाहे आप किसी भी सोर्स से उसको बना लें, किसी भी सोर्स से उसको प्रोड्यूस कर लें या किसी भी मेथड से उसको प्रिपेयर कर लें, उसके अंदर हमेशा एलिमेंट की जो रेशो होगी आपके पास फिक्स्ड होगी. एग्जांपल से आपको इजीली फिर क्लियर हो जाएगा. एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ. मान ले आप वाटर को बाय नेचुरल मेथड से प्रिपेयर करते हैं, या मान ले आप वाटर को पाकिस्तान के किसी भी इलाके से निकालते हैं और वाटर को अमेरिका से भी निकालते हैं. तो वाटर के अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो जो आपके पास होगी 2:1 हमेशा रहेगी, चाहे आप पाकिस्तान के इलाके से निकालें या अमेरिका से निकाल दें या आप उसको नेचुरली वाटर बना लें. तो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. So this law simply states that every sample of pure substance always contains same element in fixed proportional regardless of its source and method of preparation. वो मैटर नहीं करती कि वो आप किस मेथड से बना रहे हैं, किस सोर्स से आप इसको ले रहे हैं, वो इस पर मैटर नहीं कर रहा. जो पेयर सब्सटेंस होते हैं वो उनमें हमेशा जो एलिमेंट्स की रेशो होती है वो हमेशा फिक्स रहती है. So this is actually the law of constant composition. Now come to the example in order to explain this law.
For example, we can obtain water from many sources or prepare it by many methods. हम वाटर को मुख्तलिफ सोर्सेज से प्रोड्यूस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, कुएं से पानी निकाल दें, समंदर वाला पानी ले लें, या आपके पास एसिड बारिश वाला पानी ले लें. तो ये तो डिफरेंट सोर्सेज से आ गए, या आप इसको खुद प्रिपेयर कर लें, लेबॉर्ट्रीज के अंदर वाटर को प्रिपेयर कर लें. जिस मेथड से या जिस सोर्स से भी आप वाटर को ले लें, तो उसमें हमेशा द वाटर ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स ऑलवेज कंटेन, उसमें हमेशा के लिए 11.11% हाइड्रोजन होंगे और 88.88% ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. क्लियर है कि वाटर को आप किसी भी सोर्स से ले लें या किसी भी मेथड से प्रोड्यूस कर लें, उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो परसेंटेज के हवाले से इतनी होगी. हाइड्रोजन इतने % होगा और ऑक्सीजन इतने % होगा. सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ. We can obtain water from many sources or prepare it by many methods, but the water obtained from any source, any method, always contain 11.11% hydrogen and 88.88% oxygen. Is that clear? Now come to the second example in order to explain very carefully. Second example is, student, similarly, carbon dioxide can be prepared by different methods. कार्बन डाइऑक्साइड को अभी आप डिफरेंट मेथड से प्रोड्यूस कर सकते हैं. बाय नेचुरल मेथड हमारे पास हवा के अंदर प्रेजेंट होता है, या आप किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंडर आप कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर कर लें. तो आपको ये दिखेगा कि किसी भी मेथड से आपने इसको प्रिपेयर किया हो या किसी भी सोर्स से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस किया हो, बट ईच सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड contain carbon 27.27% and oxygen is equal to 72.72%. किसी भी सोर्स से उसको प्रोड्यूस कर लें कार्बन डाइऑक्साइड को, या किसी भी मेथड से आप उसको प्रोड्यूस कर लें, उस कार्बन डाइऑक्साइड के जो सैंपल होगा एक्चुअली उसमें कार्बन की 27.27% कार्बन होगा और ऑक्सीजन एक्चुअली उसमें 72.72% हमेशा रहेगा. तो ये सिंपली लॉ आपके पास जस्ट ये कहता है कि आपके पास जो प्योर सैंपल होते हैं ना, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं ना, उनकी जो कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन मीन उनके जो पार्ट्स होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो रेशो होती है, वो हमेशा आपके पास क्या होती है, फिक्स रहती है. सो बेसिकली दिस लॉ जनरली स्टेट दैट प्योर सब्सटेंस have definite compositions which cannot be changed. Like we can see that carbon dioxide, when we prepared in different method, or we can obtain carbon dioxide by different sources, it always contain carbon in this ratio and oxygen in this ratio. I hope this law is clear now. Now come to the main points of today's lecture. आज के जो लेक्चर के मेन पॉइंट्स है वो बच्चों क्या कहते हैं. तो आज के जो फर्स्ट मेन पॉइंट है हमारे लेक्चर का वो है स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वाज प्रेजेंटेड बाय जोसेफ प्राउस्ट. दिस लॉ स्टेट दैट every sample of pure substance always contains same element in fixed proportion regardless of its source and method of preparations. Example number 1. We can obtain water from many sources or prepare it by many methods, but water obtained from any source always contain 11.11% hydrogen and 88.88% oxygen. Example number 2. Similarly, carbon dioxide can be prepared by different methods, but each sample of carbon dioxide contain carbon is equal to 27.27% and oxygen is equal to 72.72%. So student, आपने इस लॉ को क्या करना है, याद रखना है. इसकी जो स्टेटमेंट है और एटलीस्ट वन एग्जांपल के साथ इसको
ज़रूर याद रखने। अकॉर्डिंग टू पेपर्स एंड एग्ज़ाम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह आ सकता है। तो होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क भी आपका स्टूडेंट यही है कि आपने स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन विद एग्जांपल। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है और इसको एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी करवाया हुआ है, नोट से आप इसके आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आज के लेक्चर में हर बात क्लियर हो चुकी है। इसी के साथ हमारा यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आपको जो भी होमवर्क स्कूल की तरफ से मिलता है, 2 तरह के होमवर्क आपको मिलते हैं। एक तो ऑनलाइन जो हम यहाँ लेक्चर में देते हैं, और एक आपको फर्स्ट टर्म आपने कर दिया, सेकंड भी आपको मिला था वो भी आपने आई थिंक कर लिया है। जो जिन्होंने कर लिए उनको सबमिट करवाना है। और एक्चुअली सेकंड टर्म वाला जो एग्ज़ाम जो आपका होमवर्क है उसको आपने नीट कॉपी के ऊपर करना है। इसी के अलावा जो ये वाला होमवर्क मिलता है ऑनलाइन, इसको आप रफ़ पेजेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पेपर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या इसके लिए भी आप अलहदा कॉपी यूज़ कर लें। तो स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।